Yes, ma'am. Okay. Okay, I think we all are here. 26. Okay, there may be some more people. Okay, somebody tell me what had we done in the previous class? Previous class में क्या किए थे कोई बताओ? कोई घर में इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो? किसी को याद ही नहीं है कि पिछले क्लास में क्या हुआ था? I'm ম্যাম asking. অ্যাডজেক্টিভের কিছুটা হয়েছিল, মানে ওয়ার্কশিটের, আর প্রিপোজিশনটা বাকিটা হয়েছিল। আচ্ছা, প্রিপারেশন কমপ্লিট হয়ে গেছিল, রাইট? মানে ওই ফিক্সড প্রিপারেশন, ফ্রেজাল ভার্ব এগুলো হয়েছিল। হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে প্রিপারেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে। আচ্ছা, অ্যাডজেক্টিভের কিছু কোশ্চেনস বাকি আছে, রাইট? হ্যাঁ। ওকে, আচ্ছা, কোয়েশ্চেন নাম্বার দেখো তো কত কোয়েশ্চেন হয়েছে আমাদের, টেল মি। কত কোয়েশ্চেন নাম্বার অবধি হয়েছে আমাদের? 20। 20। ঠিক আছে, বাকিটা আজকে করে নিচ্ছি। Then we were about to start rearrangement. আচ্ছা, আগে আমরা rearrangement করে নি, দেন আমরা অ্যাডজেক্টিভে যাব, রাইট? আগে একটু রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট মানে প্যারাজাম্বলসটা করে নিচ্ছি, তারপর লাস্টে একটু অ্যাডজেক্টিভসটা সলভ করে নেব, আদারওয়াইজ ওটাতেই পুরো টাইম চলে যায়। ঠিক আছে? ওকে, প্যারাজাম্বলস আগে করেছো তোমরা? মানে আগে কোনো ক্লাসে আমাদের প্যারাজাম্বলস হয়েছে? হ্যাঁ হয়েছিল, যখন অফলাইন ক্লাস ছিল। ওকে, অফলাইনে হয়েছে, অনলাইনে একটা হয়নি, রাইট? না। ওকে, ঠিক আছে, আজকে আমরা প্যারাজাম্বলস করব। আচ্ছা, টেল মি, তোমরা এসবিআই এর জন্য প্রিপারেশন স্টার্ট করেছো নাকি জাস্ট ফর্মটা ফিল আপ করে ছেড়ে দিয়েছো? এসবিআই এর জন্য প্রিপারেশনটা স্টার্ট হয়েছে নাকি জাস্ট ফর্ম ফিল আপ করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে? স্টার্ট, সৈকত ইজ সেইং স্টার্ট করেছে। আচ্ছা সৈকত, কি স্টার্ট করেছো, কি করছো ইংলিশে? লেট মি নো। ম্যাম প্যারাজাম্বল করছি, মানে ইংলিশের মক দিচ্ছি, যেখানে পাচ্ছি মক দিচ্ছি। ইয়া, ভেরি ইংলিশ গুড, হোক, ম্যাথ হোক, রিজনিং হোক। ভেরি গুড। জিএটা আপাতত বুঝতে পারছি না, জিএটা ডেলি করছি, ওটার আপাতত তেমন কিছু না। ওকে, আচ্ছা, আর বাকিরা? আচ্ছা, রিডিং কম্প্রিহেনশন এগুলো করছো? হ্যাঁ ম্যাম, এমনি তো হিন্দু পড়ছি, আর এমনি ওই টেস্ট যেরকম হচ্ছে সেরকম দিচ্ছি। আচ্ছা, হোয়াট অ্যাবাউট আদার্স? আর কেউ প্র্যাকটিস করছো না কিছু? মানে শুধু সৈকত এক্সামে বসবে, তোমরা বসবে না, রাইট? অর ইউ মে হ্যাভ দ্য কনসেপশন দ্যাট ইংলিশ ইজ আ ভেরি ইজি সাবজেক্ট, জাস্ট এক সপ্তাহ আগে পড়লে হয়ে যাবে। আচ্ছা, আয়ুষী ইজ সেইং দ্যাট রিডিং কম্প্রিহেনশনে অনেক টাইম লাগছে। আচ্ছা, অনেক টাইম লাগছে, তাহলে ওটার একটা সলিউশনটা কি? উই নিড টু প্র্যাকটিস, রাইট? এবার দেখো, আমি তোমাদের বলেছি দ্যাট যখন আমাদের ব্যাংকিং এর এক্সামের জন্য যখন ফোকাস করতে হচ্ছে, দ্যাট মিনস ব্যাংকিং আমাদের মোস্টলি গ্রামারে ফোকাস করছে না। যদি আমি স্পেশালি এসবিআই এর কথা বলি, তাহলে দে আর ফোকাসিং অন দিস miscellaneous topics like parajumbles, close test, reading comprehension, then rearrangement, then comes fill in the gaps, or question tag. They are doing all this kind of things, okay? And all these questions consume a great lot of time. তো টাইমটা কমাতে হবে আমাদের, 20 মিনিটস এর মধ্যে ইংলিশ কমপ্লিট করতে হবে। সো ফর দ্যাট ইউ নিড রিভিশন অর ইউ নিড প্র্যাকটিস, যেটা তোমাদের করতে হবে। যেটা যদি ভাবছো দ্যাট ঠিক আছে প্যারাজাম্বলস বা রিডিং কম্প্রিহেনশন তো কমন পাবো না, প্র্যাকটিস করে কি লাভ, বাট ট্রাস্ট মি, যদি প্র্যাকটিস না করো তাহলে কিন্তু ওখানে গিয়ে 15 মিনিট তোমাকে রিডিং কম্প্রিহেনশন করতেই লেগে যাবে, দেন 5 মিনিটে আর বাকিগুলো কি করবে আই ডোন্ট নো। Yes, who is saying this chat? Okay. Sharoni, yes, reading comprehension অনেক টাইম লাগে, I agree. Parajumbles ও অনেক টাইম লাগে, ক্লোজ টেস্টও টাইম লাগে, but it's just a matter of practice. যে বেশি প্র্যাকটিস করবে তার টাইমটা কম লাগবে, যত বেশি প্র্যাকটিস করবে তত কম টাইম লাগবে, and you will have to do this. প্র্যাকটিস আমাদের করতে হবে।
গট ইট? আজকে আমরা প্যারাজাম্বলস করছি, দেখবে প্যারাজাম্বলসেও তোমাদের কত টাইম লাগছে এন্ড কত কনফিউশন হচ্ছে। সো আই এম জাস্ট সেইং দিস, যদি তোমরা এসবিআই এক্সামের জন্য একটু প্রিপারেশন করছো বা ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ক্লিয়ার দিস এক্সামিনেশন, দেন প্লিজ প্র্যাকটিস করো, যত হবে প্র্যাকটিস করো। সোহম, ইউ ওয়ান্ট টু সে সামথিং? No, ma'am. ওকে, তুমি প্র্যাকটিস করছো? প্যারাটা করিনি, আমি প্রিপোজিশন আর অ্যাডজেক্টিভ গুলো করছিলাম বইয়ে। দেখো ঠিক আছে, আপাতত তুমি কি এসবিআই এর ফর্মটা ফিল আপ করেছো? এসবিআই ফর্মটা ফিল আপ করেছো সোহম? মেবি তোমার মাইকে প্রবলেম হচ্ছে। হ্যালো, হ্যাঁ বলছি, তুমি এসবিআই ফর্মটা ফিল আপ করেছো? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, ইয়া শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ বলছি আমি ফিল আপ করেছি, এক্সাম দেবো। আচ্ছা, এক্সাম দেবে, তাহলে তো ইউ নিড প্র্যাকটিস, ঠিক আছে? এবার যদি ওই এক্সামটা দিচ্ছ, তাহলে গ্রামারের ওপর আমি বলবো সেরকম বেশি ফোকাস না করতে, বিকজ গ্রামার ওখানে বেশি দিচ্ছে না। এরর ডিটেকশন অফকোর্স দিচ্ছে, এরর ডিটেকশন প্র্যাকটিস করতে পারো, বাট নট লাইক প্রেপোজিশন অ্যাডজেক্টিভ, এটা মানে স্পেসিফিক্যালি প্র্যাকটিস করবে। লাইক স্পেসিফিক্যালি যেখানে এরর ডিটেকশন দেখছো সেইগুলো নিয়ে সলভ করো, যেখানে ওভারঅল গ্রামারটা ডিল হচ্ছে। বাট জাস্ট টপিক ওয়াইজ, এটা এসএসসির জন্য ইম্পর্টেন্ট অফকোর্স, বাট টপিক ওয়াইজ তোমাকে এই ব্যাংকিং এর স্পেসিফিক্যালি এসবিআই এর জন্য দেখতে হবে না। এসবিআই এর জন্য তোমাকে মোস্টলি মিসলেনিয়াস দেখতে হবে, যেটাতে বেশি টাইম লাগে। সো ট্রাই সলভিং দোজ। কি ক্লোজ টেস্ট? ক্লোজ টেস্ট, অফকোর্স দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ওকে ওকে ওকে। ওকে ম্যাম, মেইনলি যে প্রবলেমটা হচ্ছে ভোকাবুলারিটা অনেক কম থাকার জন্য ইয়েস। মানে রিডিং কম্প্রিহেনশন পড়ে বুঝতে অনেকটা সময় লাগছে, বা যে কোনো কিছু প্যারাজাম্পল রিডিং কম্প্রিহেনশন ভোকাবুলারিটা অনেকটা স্টকটা কম বলে, মানে ওখানে অনেক Exactly. কঠিন কঠিন ওয়ার্ড থাকছে যেগুলো আমরা মানেই জানছি না, এটা আন্দাজে Exactly. ধরছি এরকম। এন্ড স্পেশালি এই প্রবলেমটা তোমাদের ক্লোজ টেস্টে হবে, যেখানে মানে জানো না এন্ড ফিল আপ করতে হবে। তো ইয়া হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভোকাবুলারি, হ্যাঁ তো ভোকাবুলারিটা তোমাদের ডেভেলপ তো করতেই হবে অফকোর্স। এবার এটার জন্য তো আলাদা কিছু বলতে পারি না, বাট হ্যাঁ লাইক যত বই পড়বে, আই ক্যান অলসো সাজেস্ট দ্যাট, মানে বই যতটা পড়বে, লাইক একটা বই আছে ওয়ার্ড পাওয়ার মেড ইজি, ওটা সবাই ভোক্যাবের জন্য ফলো করে, বা এডিটোরিয়াল পড়বে, ওইখান থেকে ভোক্যাব ডেভেলপ হতে পারে। তো ভোক্যাবের জন্য স্পেশালি আই ক্যানট সে দ্যাট আই এম গিভিং ইউ 100 ওয়ার্ডস এন্ড উইথিন দিস 100 ওয়ার্ডস অনলি the vocabs are going to come, সেটা তো হবে না তোমাদের। এডিটোরিয়াল আর একটা বইয়ের কথা কি বললেন ম্যাডাম? ওয়ার্ড পাওয়ার মেড ইজি, ওটা তোমাদের মানে ভোক্যাবের জন্য খুব মানে স্পেসিফিক্যালি ভোক্যাবের জন্য ওই বইটা। আচ্ছা, ওকে। আর সৈকত saying রিডিং কম্প্রিহেনশনের জন্য আলাদা বই নেব না সৈকত, you do not have to buy a particular book for reading comprehension. It's just that রিডিং কম্প্রিহেনশন ক্যান বি ডান ফ্রম এনিওয়্যার। জাস্ট একটা পার্টিকুলার বই কিনবে রিডিং কম্প্রিহেনশনের জন্য, সেটা কিন্তু আই ওয়ন্ট সাজেস্ট, বিকজ রিডিং কম্প্রিহেনশন ঠিক আছে, সেই বইতে যদি 50 বা 100 রিডিং কম্প্রিহেনশন থাকে, ইউ জাস্ট প্র্যাকটিস দ্যাট, এন্ড যদি ওটা শেষ হয়ে গেছে দেন আবার রিভিশন করে তো লাভ নেই। তুমি কি রিডিং কম্প্রিহেনশনটা লার্ন করবে? ইউ ডু নট নিড টু লার্ন দ্যাট। সো আই উড জাস্ট সাজেস্ট দ্যাট যেখান থেকে পাচ্ছ রিডিং কম্প্রিহেনশনে যদি কোয়েশ্চেন পাচ্ছ সেখান থেকে সলভ করো, মক টেস্টে পাচ্ছ ওখান থেকে সলভ করো, এসটি পোর্টাল থেকে পাচ্ছ ওখান থেকে সলভ করো, ইন্টারনেটে যদি পাচ্ছ তাহলে সলভ করো, ইউটিউবে অনেক কন্টেন্টস আছে যেখানে রিডিং কম্প্রিহেনশন থাকে, ওখান থেকে সলভ করো, বা ইন্টারনেটে তুমি দেখবে এসবিআই এর জন্য রিডিং কম্প্রিহেনশন বলে সার্চ করবে, সেখানে পাবে, সেখান থেকে সলভ করো। সো ফ্রম wherever you get questions just try to collect those, বা কোনো যদি তুমি এখন তো কলেজ স্ট্রিট অফকোর্স কেউ যাচ্ছে না, বাট কলেজ স্ট্রিটে লাইক বুকলেট পাওয়া যায় রিডিং কম্প্রিহেনশন বা পার্টিকুলার টপিকস এর বুকলেট পাওয়া যায়, ওই বুকলেট পেলে ওটা সলভ করো। সো আই ওয়ন্ট সাজেস্ট দ্যাট পার্টিকুলার কোনো বই কিনে নাও, ঠিক আছে? জাস্ট বাট যেখান থেকে কোয়েশ্চেন পাচ্ছ সেটা সলভ করো। ওকে, ঠিক আছে, উইল টক ফার্দার, বাট আগে একটু আমরা রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটা স্টার্ট করি। লেটস ডু ইট। ওয়েট, মানে ক্লোজ টেস্ট? না, প্যারাজাম্বলস টাইপ, এটার পরে ক্লোজ টেস্ট। ওকে ওকে ওকে। ওকে, এই কোয়েশ্চেনটার মানে কি কেউ বলতে পারবে? এই যে পার্টিকুলার আফটার রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট থেকে যে লেখা আছে, এটাতে কি জিজ্ঞেস করতে চাইছে? এনিবডি? মানে ফার্স্ট আর এ আর ই এর মধ্যে এখানে কোন পেয়ারটা কারেক্ট অর্ডারে আছে? হ্যাঁ মানে বেসিক্যালি দেখো এখানে কি জিজ্ঞেস করেছে।
ফর এক্সাম্পল ইফ আই সে অ্যারেঞ্জমেন্টের পরে ABCDE হলো, ঠিক আছে? এবার জিজ্ঞেস করছে, ওকে, এবার জিজ্ঞেস করছে which of the following pairs of phrases in its correct order would lie between first and last phrase। আচ্ছা, এখানে first and last phrase টা কি? ओके, मेघा दास इज सेइंग बट मैम अगर ग्रामर का नॉलेज नहीं होगा तो स्पॉटिंग एरर सॉल्व कैसे होगा? नो मेघा, आई एम नॉट सेइंग कि तुमको ग्रामर का नॉलेज नहीं चाहिए, बिल्कुल मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कही कि तुमको ग्रामर का नॉलेज नहीं चाहिए। अगर ग्रामर का नॉलेज ही नहीं लगता तो फिर मैं ग्रामर यहाँ पे कराती ही क्यों, राइट? मैं प्रिपोजिशन, एडजेक्टिव ये सब क्यों करा रही हूँ अगर इसका नॉलेज नहीं लगेगा? ग्रामर का नॉलेज इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है, लेकिन मैं इतना कह रही हूँ कि ग्रामर से SBI में उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। मतलब एरर डिटेक्शन अगर को तो मैक्सिमम 5, मैं कह रही हूँ 5 भी नहीं आता है मैक्सिमम, लेकिन मैंने 5 कहा कि 5 क्वेश्चंस आता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पर्टिकुलर टॉपिक वाइज ग्रामर में मत जाओ, क्या करो कि एरर डिटेक्शन जहां से मिलता है, जैसे कि कुछ एरर डिटेक्शन का क्वेश्चंस मिला, वो भी ग्रामर बेसिस पे ही होता है एरर डिटेक्शन। तो जो जनरल मिला है, मतलब ऐसा नहीं कि प्रीपोजिशन का एरर डिटेक्शन सॉल्व करे या फिर एडजेक्टिव का करे, ऐसा नहीं, जो जनरल एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन मिल रहा है उसको सॉल्व करो फॉर दिस एग्जाम स्पेसिफिकली। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ग्रामर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रामर इज वेरी मच रिक्वायर्ड, अदरवाइज मैं ग्रामर क्यों पढ़ा रही होती, ठीक है? इज इट क्लियर मेघा? ओके, चलो, तो यहाँ पे मैं जो बता रही थी, ओके, सौम्या दास हैज रेज अ हैंड। सौम्या, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस मैम, एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था कि एरर डिटेक्शन में जो ग्रामर के बेस में आता है उसमें देखा है कि जो ऑप्शंस रहता है ना वो सभी देख के लगता है कि सभी होगा ठीक। ये मतलब ये क्यों हो रहा है? मतलब इससे निकलने के लिए कोई ऐसा मतलब उससे निकलने के लिए वही यही कि मतलब यू नीड अ प्रॉपर नॉलेज। यहाँ पे देखो, एक प्रॉपर बस नॉलेज चाहिए होता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, बस हाँ, इफ यू नो ग्रामर तो तुमको बस वहां पे देखो, ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव रिलेटेड जब मैंने ग्रामर कराया तो सिर्फ वहां पे एडजेक्टिव का गलती ढूंढना है, अगर मैंने प्रेपोजिशन रिलेटेड कराया सिर्फ प्रेपोजिशन का ढूंढना है, ठीक है? लेकिन एग्जाम में क्या हो रहा है, जनरल आ रहा है, मतलब कि ओवरऑल मिला के आ रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेपोजिशन का गलती खोजना है वहां पे। तो जब वहां पे इन जनरल आ रहा है, मैं वही कह रही हूँ कि जनरल हम लोग कब प्रैक्टिस करेंगे, जब हमारा सारा ग्रामर टॉपिक ओवर हो जाएगा तो हम जनरल लेके चलेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज इसलिए सॉल्व कर रहे हैं सो दैट हर एक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर हो, तो क्या होगा, जनरल एरर फाइंड करने में इजी होगा। बट एज इन एग्जाम इज जस्ट नॉकिंग द डोर, और हमारा ग्रामर का टॉपिक्स बाकी है, एंड साथ में हमें मिसलेनियस भी करना है, बिकॉज मिसलेनियस एग्जाम्स में ज्यादा आ रहे हैं। तो इसीलिए अगर ग्रामर का टॉपिक मैं जो कह रही हूँ कि वो जब तुम लोग को डाउट हो रहा है तो वो डाउट ऑफकोर्स ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो डाउट हटेगा, ठीक है? मतलब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना टाइप्स का क्वेश्चंस करोगे, उतना ज्यादा समझ में आएगा कि कहाँ पे गलती हो रहा है, कैसे गलती हो रहा है। बस यही एक वे है, अदरवाइज तो हम लोग सिलेबस के हिसाब से चल ही रहे हैं, जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा देखना, तब तक पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है? एक्चुअली ऑप्शंस ऐसे बना के देता है I कि know। हम लोग जब बोलते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में ऐसा सुनने में लगता है कि हाँ ठीक ही है हाँ, ये, ठीक तो है, हम बोलते हैं ऐसा। यस, हाँ या फॉर एग्जाम्पल जैसे आई थिंक 1-2 दिन पहले तुम्हारे बैच का, क्या आई डोंट नो, किसी ने मुझे क्वेश्चन भेजा था कि एक क्वेश्चन था, उसमें था काइंडली रिक्वेस्टेड, सो ही कुड नॉट फाइंड द एरर, कि काइंडली रिक्वेस्टेड कहाँ पे एरर है। तो मैंने उसको बताया कि काइंडली रिक्वेस्टेड वो काइंडली नहीं होगा, रिक्वेस्टेड आ गया तो काइंडली नहीं होगा वहां पे, ठीक है? तो बात यहाँ पे ये है ना कि काइंडली रिक्वेस्टेड हम लोग जब बात करते हैं तब हम लोग कह देते हैं आई एम काइंडली रिक्वेस्टिंग यू, ठीक है? ऐसे हम लोग बातों में कह देते हैं, बट जब हम लोग ग्रामेटिकली वो देखते हैं तो वो गलत होता है, ठीक है? মানে तो এক वही জিনিস बात ডবল বার ইউজ করা হচ্ছে, है, মানে রিকোয়েস্ট তো কাইন্ডলি হবে। है। हाँ ठीक है, हाँ। ওকে। तो वो हम लोग जितना আর टाइप का একটা क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक सेकंड, जितना टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी हम लोग को ज्यादा क्लियर होगा। ओके, है আর কে কি বলছিল? একটা একটা জিনিস জিজ্ঞেস করার ছিল, একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। আই হ্যাভ টু ইন্ডালজ ইন স্টাডিজ না আই হ্যাভ টু ইন্ডালজ মাইসেলফ ইন স্টাডিজ, এই ক্ষেত্রে I কি have হবে? to indulge myself in studies, I have to indulge in studies, I have to indulge in studies। indulge এর পরে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন যে প্রত্যেকবার আসবে সেটা কিন্তু না, ঠিক আছে? I have to আচ্ছা indulge in আচ্ছা studies, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, আচ্ছা দেখো, আমি যেটা এটা বোঝাচ্ছিলাম, people have started giving the answer, people have started, okay fine। See, what I was explaining is that for example after rearrangement अगर मेरा आता है ABCDE, अगर मेरा rearrangement के बाद ABCDE आता है तो फर्स्ट फ्रेज है A, लास्ट फ्रेज है E, ओके? तो क्या बोल रहा है कि कौन सा पेयर इन दोनों के बीच में पड़ेगा, would lie between, तो कौन सा पेयर B या D पड़ेगा, या B या D इन दोनों के बीच में है? C भी है, लेकिन C के यहाँ पे क्या कर दिया, एक डैश दे दिया है सब में। तो फर्स्ट फ्रेज जो हो जाएगा और जो लास्ट फ्रेज हो जाएगा उसके बीच में क्या आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करने के बाद देखना पड़ेगा कि कौन सा बीच में आ रहा है।
তার মানে বি সি ডি এর মধ্যে একটা আসবেই না? আমি তো এটা জাস্ট এক্সাম্পল দিলাম, তোমাকে অ্যারেঞ্জ করে দেখতে হবে ফার্স্ট আর লাস্টের মাঝখানে কি আসছে। না মানে একটা কি পুরোপুরি বাদ যাবে? না না, বাদ কেন যাবে, মানে একটা, হ্যাঁ একটা তোমাকে পুরোটা অ্যারেঞ্জ করতে হবে, আগে পুরোটা অ্যারেঞ্জ করো, তারপর নিজেই বুঝে যাবে। ओके। ओके, बहुत लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है, तो देख लेती हूँ मैं एक बार। अभी तक मुझे जो भी आंसर मिला है सही नहीं है, চলো फिर से এ ট্রাই আর করো। ইটা কি ফিক্সড যে পুরোটা না, মানে কি ওটাই কোনোটাই ফিক্স না, কোনোটাই ফিক্স না। ও মানে এ আর ইও যে ফার্স্ট না লাস্ট হবে তারও মানে কিছুই নেই? ফিক্স না, আমি তোমাকে জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখালাম। ওকে ওকে ওকে। देखो पहली बात तो इलेक्ट्रॉल से स्टार्ट नहीं होगा, ए से स्टार्ट नहीं होगा। चलो मैंने एक रेफरेंस के लिए दे देती हूँ कि डी से स्टार्ट होगा। चलो नाउ अरेंज, डी से स्टार्ट हो रहा है, अब अरेंज करो। ডি বি ই এ সি। ও বলেও अभिषिक्ता দিয়েছে একজন। एंड अच्छा এখানে যে বলছে সোহম, রাইট, DBEAC। अच्छा चलो और कोई ऑप्शन बताओ। DBEAC ये एक ऑप्शन हुआ, DBEAC सबका यही आ रहा है। अच्छा और बताओ। चलो देख लेते हैं। देखो पहले क्या है। यस मैम, DBEAC। Okay, let's see. Amid the raging debate on electoral bonds in India, okay, electoral bonds in India, ठीक है, उसके बारे में amid the raging debate क्या हो रहा है, एक raging debate चल रहा है electoral bonds in India. It is important, okay, जो जो raging debate चल रहा है electoral bonds, ठीक है, उसके ऊपर क्या हो जा रहा है, एक debate चल रहा है। तो what is important, उसके बाद क्या important है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है बी वाला, ठीक है, टू अंडरस्टैंड। इंपॉर्टेंट के साथ क्या कनेक्टिविटी आ रहा है, इंपॉर्टेंट के साथ बी वाला आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, तो important है टू अंडरस्टैंड व्हाई द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द प्रोसेस, टू अंडरस्टैंड व्हाई द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द प्रोसेस। ओके, तो बोल रहा है पहले जो डिबेट चल रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लेके इंडिया में, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले हम समझ जाए कि गवर्नमेंट ने वो प्रोसेस इंट्रोड्यूस क्यों किया। अच्छा कौन सा प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ यूजिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर पॉलिटिकल फंडिंग। ओके, प्रोसेस ऑफ यूजिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर पॉलिटिकल फंडिंग। ओके, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, अब उसके बाद डीबीई, ठीक है, डीबीई हो गया। उसके बाद है टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर इंट्रोड्यूस टू स्टॉप कैश फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, सो एज टू स्टॉप कैश फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कैश फंडिंग क्यों, बिकॉज मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज वर टेकिंग लार्ज डोनेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश। बहुत सारे पार्टीज क्या कर रहे थे, लार्ज डोनेशन ले रहे थे इन द फॉर्म ऑफ कैश। सो डीबीईएसी। अच्छा जो लोग ए से बोल रहे थे, लेट्स सी, जो लोग ए से बोल रहे थे, ए से कहा गया, ए बी सी, ए के बाद सी आ सकता है, ए सी। চলো দেখ লেতে এসে। এরপরে সি হবেই, এটা ফ্যাক্ট। হ্যাঁ কিন্তু ঠিক আছে, এটা দেখে নি তাহলে। ইলেকট্রাল বন্ডস वर इंट्रोड्यूस टू स्टॉप कैश फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। किसी ने ए वाला जो ऑप्शन था पहले देख लेते, ए से ए बी सी ई डी। अच्छा किसी ने कहा था ए बी सी ई डी, ए बी सी ई डी, लेट्स सी। तो ए जो था, ए इज इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू स्टॉप कैश फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। फिर कहा गया टू अंडरस्टैंड व्हाई द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द प्रोसेस। फिर बिकॉज मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब कैसे, कोई अरेंजमेंट ही नहीं आ रहा है यहाँ, कहाँ से कुछ अरेंजमेंट आया, वो अरेंजमेंट यहीं पे आ रहा है। किसी को प्रॉब्लम हुआ इसमें डीबीईएसी समझने में, किसी को भी प्रॉब्लम होगा बताओ, मैं समझा दूंगी। एनी प्रॉब्लम मैम ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मेरा भी यही निकला है, लेकिन ए डी नो मैम, ए सी डी बी ऐसे हो सकता है। ए सी डी बी ई, चलो देखते हैं। ACDBE. A है electoral bonds were introduced to stop cash funding of political parties. Then C is because most political parties were taking large donation in the form of cash. Okay. ठीक है, A के बाद C आया। Then आता है amid the raging debates on electoral bonds in India, it is important to understand why the government introduced the process. नहीं देखो पहले अगर A आ जाता है, electoral bonds are introduced to stop cash funding of political parties, ठीक है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का कैश फंडिंग को स्टॉप करना था। फिर उसके बाद कह रहे हो बिकॉज मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज वर टेकिंग लार्ज डोनेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश। चलो ए और सी का पेयर गया। फिर उसके बाद कह रहे हो डी,
amid the raging debate on electoral bonds in India. फिर electoral bonds में फिर debate क्यों आ रहा है? जब तुमने electoral bonds इंडिया का मतलब इंडिया में इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, उसके बाद डिबेट तो नहीं आ रहा है. डिबेट आ रहा था, उसके बाद बता रहा है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पहले हमें कैसे इसको अरेंजमेंट कैसे करना है. पहले जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के ऊपर डिबेट चल रहा है, उसके बाद हम उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं, rather than कि हम लोग पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को समझ लिए फिर बता रहे कि अच्छा एक डिबेट भी चल रहा था. ऐसा थोड़ी बताना है. पहले एक डिबेट चल रहा है, उसके बाद हमें लॉजिकली कनेक्ट करना है. ऐसे थोड़ी कि पहले हम समझ लिए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या होता है, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद बोल रहे थे अच्छा पता है एक डिबेट भी चल रहा था इसके ऊपर. ठीक है, ऐसे थोड़े होता है. पहले बोलेंगे डिबेट चल रहा था, फिर बोलेंगे कि क्यों डिबेट चल रहा था, फिर क्यों किया गया. एक के बाद एक लॉजिकली कनेक्टिविटी लाना पड़ेगा. क्लियर हुआ? हाँ. अच्छा, इसमें देखो पहला क्या है डी और लास्ट क्या है सी, तो बीच में पेयर किसका आ रहा है? बी और ए का, है ना? बी और ए का पेयर आ रहा है कि नहीं? डी बी ई ए सी. अगर প্রপার डी পেয়ারে তো না ম্যাম, মধ্যখানে তো ই আছে। হ্যাঁ ডি বি ই এ সি हम लोग क्या না না আমি ঠিক ক্যান্সারটা কোনটা বললাম আমি আবার DBEAC। हाँ DBEAC. तो इसका हम लोग का पहला क्या आ गया? पहला है डी, है ना? फर्स्ट इज डी, देन इज सी. तो बीच में क्या आ गया? बी आया एंड फिर ए आया. बीच में बी और ए है, तो बी और ए का पेयर नहीं आ गया 3 में? ये तो बी और ए का पेयर. अच्छा, मैंने क्या कहा? बीच वाला नहीं दिया है, बीच वाला दिया नहीं है. ठीक है, बी ये जो डैश है ना, ये डैश एक दे दिया और एक ए. यहाँ पे समझ लो ई हो गया एक. यही तो मैं समझा, यही तो मैं समझा रही थी कि फर्स्ट और लास्ट के बीच का जो रहेगा वो हमें बताना है, और यहाँ पे एक डैश दे दिया गया है. समझ रहे हो? गॉट इट। चलो, एग्जाम में भी ऐसे ही रहेगा? हाँ देखो मैं इसीलिए अलग अलग टाइप का करा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में किस टाइप का दे देगा वो समझ में नहीं आएगा. कुछ कुछ इस टाइप का दे देता है, कुछ मैंने जो कराया था कि पहला सेंटेंस फिक्स रहता है बाकी करना है, कुछ में रहता है कि कुछ भी फिक्स नहीं रहता है सब अरेंज करना है, कुछ में रहता है कि पहला और लास्ट सेंटेंस फिक्स रहता है. तो वो किस टाइप का दे देगा इट इज नॉट श्योर. किसी भी टाइप का दे सकता है, इसीलिए मैं अलग अलग टाइप का पैराजम्बल्स करा दे रही हूँ. ठीक है, वरना ऐसा आ जाएगा फिर तुम लोग समझ ही नहीं पाओगे कि कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे. इसीलिए मैंने इस टाइप का कराया है. चलो ये वाला देखो, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि अरेंजमेंट के बाद कौन सा वाला जो है मतलब सेंटेंस लास्ट रहेगा, मतलब अरेंजमेंट के बाद कौन सा वाला जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगा, विल रिमेन अनचेंज्ड. ये वाला पैटर्न मैं बहुत मॉक टेस्ट में लिखा है. कांट हियर यू. क्या ये वाला जो पैटर्न है ना, जो अनचेंज्ड का, वो बहुत सारे मॉक टेस्ट में आता है. हाँ हाँ Shayuni, okay. Shayuni is saying D. देखो, I do not want a proper answer. I just want a proper arrangement. मुझे पहले पूरा arrangement बताओ, उसके बाद देखेंगे. पहले मुझे पूरा proper arrangement बता दो. D হবে, इसका क्या arrangement निकल रहा है? D C তারপর D। তারপর হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ফার্স্টে ডিটাই বলতে গিয়ে শুধু ডি লিখে ফেলেছি, সরি। ও আচ্ছা, डी सी उसके बाद ई होगा क्या? अच्छा फिर अच्छा, देवज्योति is saying D C A B E. अच्छा, और को भी वही बोल रहा है. ओके, और बताओ. D C E A B. Keshav is saying D C E A B. Okay. আমার মনে হয় বেরিয়ে গেছিলাম, মনে হয় ভুল করে হাত লেগে। Let's see. नीलांजशा is saying D C A B E. Okay, नीलांजशा. हाँ, क्या शोम क्या बोल रहे हो? Tom is saying something.
DCABE। मैम ओके मुझे तो DCEAB लग रहा है। ओके DCEAB DCABE ये 3 ऑप्शन अभी तक आ गए, 2 ऑप्शन आया है अभी तक। एनीथिंग एल्स और किसी को कुछ लग रहा है? ठीक है, यही दोनों में कंफ्यूजन चल रहा है। लेट्स सी। सो डी, सबका पहले डी आ रहा है, ठीक है चलो। D, that is the National Democratic Alliance, the National Democratic Alliance government. The National Democratic Alliance government has displayed, National Democratic Alliance government has displayed a low tolerance for inflation in its previous term. ठीक है, a low toleration for inflation. Somebody explain what is inflation? rise in prices, rise in price of products. हाँ देखो, मतलब अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारा परचेसिंग कैपेबिलिटी कम जाएगा, ठीक है। मतलब इन्फ्लेशन क्या होता है कि उसमें प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो हमारा परचेसिंग कैपेसिटी वो कम हो जाता है, ठीक है। तो नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने डिस्प्ले किया अ लो टॉलरेंस फॉर इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन के खिलाफ वो लोग मतलब कोई टॉलरेंस नहीं था कि वो लोग इन्फ्लेशन को टॉलरेट नहीं करेंगे, ठीक है। अ लो टॉलरेंस फॉर इन्फ्लेशन इन इट्स प्रीवियस टर्म, अपने प्रीवियस टर्म में। फिर क्या बोला है, बट रिवाइविंग उसके बाद किसी ने ए कहा, किसी ने ई कहा, चलो। बट रिवाइविंग अ स्पटरिंग इकोनॉमी माइट रिक्वायर আপনার स्ट्रॉन्गर। কথা শোনা যাচ্ছে না। আমার কথা শোনা যাচ্ছে না কাউকে? অসুবিধা শোনা কোনো যাচ্ছে। হচ্ছে না, শোনা না যাচ্ছে। না ম্যাডাম ঠিকই আছে, সাউন্ড শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা তাহলে আই থিংক তুমি একবার রিজয়েন করো, মেবি তখন শোনা যাবে। তোমার হয়তো নেটওয়ার্ক প্রবলেম, ঠিক আছে। তাহলে देखो डीसी देन कम्स, ओके किसी ने ए कहा, किसी ने ई कहा, देन हो जाएगा। एक ने कहा कि द नेशनल, ओके, the National Democratic Alliance government has displayed a low tolerance for inflation in its previous term, but reviving their way to consumer, ये कैसे हो जाएगा? But reviving a sputtering economy might require, a sputtering economy मतलब एक strong economy, okay, क्या बोल रहा है? But reviving, किसको revive करना है? Economy को revive करना है। Consumer की तरफ हम लोग का वे नहीं revive करना है, क्या करना है? Economy को revive करना है। But reviving a sputtering economy might require stronger, okay, तो DCA तक तो सही हुआ। माइट रिक्वायर स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर क्या चाहिए? अगर इकोनॉमी को रिवाइव करना है उसके लिए हमें स्ट्रॉन्गर चाहिए। स्ट्रॉन्गर क्या चाहिए? मेडिसिन। स्ट्रॉन्गर मेडिसिन चाहिए, ओके यस, स्ट्रॉन्गर मेडिसिन कड़ा दवाई। हाँ स्ट्रॉन्गर मेडिसिन चाहिए, ठीक है। रेदर देन क्या? इंटरेस्ट रेट कट्स दैट डू नॉट वर्क देयर वे टू द कंज्यूमर, मतलब जो कि कंज्यूमर के लिए बेनिफिट नहीं होता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक स्ट्रॉन्गर मेडिसिन चाहिए, हमें इंटरेस्ट रेट कट्स नहीं चाहिए जो कि कंज्यूमर के लिए उतना बेनिफिट नहीं करता है। तो इसका प्रॉपर आंसर क्या हो गया? DCABE, ये वाला। इज इट क्लियर? अनचेंज सकते ही अनचेंज विल बी ई, ठीक है, अनचेंज हो गया ई। ये वाला क्लियर हुआ? यस। ओके चलो ये वाला देख लो। इसमें देखो प्रॉपर बस रीअरेंजमेंट करके दिखाना है। CBAD और CDBA। No wait, हाँ CDBA। बताओ, और भी बताओ किसी को और क्या लग रहा है? CDBA कह रहे हैं, अच्छा सबका सी से ही स्टार्ट हो रहा है, किसी का और किसी से स्टार्ट नहीं हो रहा? अच्छा, अंकुन इज सेइंग BADC, ओके BADC, चलो। सुमित इज सेइंग ADCB, अच्छा ADCB। यार ADCB तो ऑप्शन में भी नहीं है, तुम कहाँ से लेके आ रहे हो? शोइकॉत इज सेइंग ADBC, अच्छा
for BACD. और হ্যাঁ बताओ। ম্যাম, অ্যাকচুয়ালি সেন্টেন্স মেকিং দিয়ে হয় কিন্তু অসুবিধা হবে না, মানে এডিবিসিও হবে, মানে যেটা আমি আগে দেবো যে কেসগুলো, তবে অপশনের মধ্যে থেকে চুজ করতে বললাম আমার মনে হয় সিডি দিয়ে। দেখা যাক কি হয়, চলো। अच्छा, सुमित इज सेइंग एडीबीसी बीएसीडी। अच्छा, बीएसीडी भी आ गया। ठीक है, चलो 4 ऑप्शन मिल गया, इन चारों में डिस्कस कर लेते हैं। चलो, अरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस टू मेक अ मीनिंगफुल शॉर्ट पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। देखो यहाँ पे होगा, a pathway that balances demands of the shareholders, it falls upon the corporate management to find, with the pressures to contribute to societal welfare for maximum dividends and capital appreciation. Okay, तो BADC, अच्छा ओएनड्रीला, ठीक है, देख लेते हैं। इट, अब देखो स्टार्टिंग करेंगे इससे, इट फॉल्स अपन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट टू फाइंड। ओके, इट फॉल्स अपन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट टू फाइंड। ठीक है, क्या फाइंड करना है? कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है? टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? अ पाथवे दैट बैलेंसेस द डिमांड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। एक पाथ जो क्या कर रहा है, जो शेयर होल्डर्स का डिमांड को बैलेंस कर रहा है, फॉर मैक्सिमम डिविडेंड्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, जो मतलब मैक्सिमम डिविडेंड्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, विथ द प्रेशर्स टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटल वेलफेयर। विथ उन लोगों को क्या रहता है, उनके ऊपर ये भी प्रेशर रहता है कि उनको सोसाइटल वेलफेयर के लिए भी कंट्रीब्यूट करना है। सो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के ऊपर क्या रहता है, एक कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, ये कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक पाथ फाइंड करे जिससे क्या होगा कि डिमांड ऑफ द शेयर होल्डर्स बैलेंस रहे फॉर द मैक्सिमम डिविडेंड्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, जिससे कि उन लोगों को मैक्सिमम डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन मिले, विद द प्रेशर्स टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटल वेलफेयर, along with the pressure की मतलब उनको along with the pressure to contribute to societal welfare। तो ये मेरे लिए सबसे सही हो गया BADC। अब अगर मैं कहूँ जो बाकी ऑप्शन है जिसका, अगर ADBC जो बोल रहा है, A is like a pathway that balances the demands of the shareholders for maximum dividends and capital appreciation. A pathway that balances the demands of the shareholders for maximum dividends and capital appreciation। अच्छा, उसके बाद आता है B, it falls upon corporate management to find। उसके बाद क्या है C, with the pressures to contribute to societal welfare। ये कैसे होगा बताओ? देखो ये कैसे हो जा रहा है, A D तक तो चलो मैंने मान लिया, लेकिन B और C का तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, B C का तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा। अब अगर मैं CDBA पे आती हूँ, CDBA, with the pressures to contribute to societal welfare for maximum dividends and capital appreciation। CD का कैसे प्रेयर बैठ रहा है बताओ? प्रेशर है सोसाइटल वेलफेयर को कंट्रीब्यूट करने का फॉर मैक्सिमम डिविडेंड्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब कुछ ऑर्डर नहीं बैठा CD का, CD का कोई लॉजिकल ऑर्डर बैठा ही नहीं। ठीक है, BA का चलो मैंने मान लिया। How about CBDA with the pressure to contribute to societal welfare, it falls upon corporate management to find a pathway that balances the demands of the shareholders for maximum dividends and capital appreciation। এক সেকেন্ড, কি বললে? C? কিন্তু এটা অপশনে নেই, ঠিক আছে সমস্যা। তো অপশন নেই তো তাহলে ছেড়েই দাও আগে, ওটা তাহলে ভুলই আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ইট দিয়ে কি করে শুরু হবে? তার আগে তো ইট থেকে ডেফিনেট ডিফাইন করতে হবে। আচ্ছা, it falls upon, দেখো এখানে এটা বলছে না, এখানে पैराजम्बल्स, it doesn't mean that they are going to start a sentence from the very beginning। एक सेंटेंस तुमको पैराजम्बल्स में अगर स्टार्ट करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग से ही स्टार्ट होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कभी कभी कोई कोई जो बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है, हिंदू आर्टिकल, ठीक है, एडिटोरियल आर्टिकल का क्या किया, कोई एक बीच का पैराग्राफ उठा के दे दिया, वो कहीं से भी पैराजम्बल आ सकता है, कोई भी कहीं का भी बीच का पैराग्राफ उठा के दे सकता है। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर कि तुमको लॉजिकली देखना पड़ेगा कि कौन पहला से कहाँ से शुरू हो सकता है, वहीं से शुरू होगा, वहां पे उसको डिफाइन किया गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तुमको जो ऑप्शन में दिया गया या फिर जो तुमको सेंटेंसेस दिया गया है उसके बीच में लॉजिक फाइंड करना है कि कौन सा पहले लॉजिक में आ सकता है, कौन से दूसरे लॉजिक में आ सकता है। ऐसे ऐसा नहीं है कि तुमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसी से शुरू होगा इसी से खत्म होगा, नो, यहाँ पे कहीं पे भी फुल स्टॉप या कुछ नहीं दिया रहता है, ये कहीं से भी तुमको कहीं से भी बीच से उठा के दे देगा। कोई भी एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल का बीच से कोई 2-3 लाइन उठा के भी दे सकता है। तो इट डजेंट मैटर कि तुमको डिफाइन करेगा तो तुम वहीं से शुरू करोगे। ठीक है, अगर ऐसा होता कहीं से उठा के देता तो कोई एक सेंटेंस में तुम्हारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया रहता, इसीलिए। ओके, BADC इतना क्लियर हुआ सबका? BADC वाला? यस मैम। नेक्स्ट पे चले? यस।
ओके चलो ये वाला तो बहुत इजी है, ये तो सबका होना चाहिए। ये गलत हुआ तो सबको पीटेंगे। ये वाला बहुत इजी है। আমি মিউট করে দিচ্ছি, কি বলছো তুমি? আমি মিউট করে দিচ্ছি এখনই। ये वाला बहुत इजी है, चलो जल्दी करो। इतना टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा? हाँ जल्दी जल्दी करो, ये वाला तो बहुत इजी है, जल्दी बताओ। और ये एकदम सही बताना सबके सब। मैम ऑप्शन ए। হ্যাঁ CAEBD CAEBD ओके वेरी गुड CAEBD। चलो सबका CAEBD आया है, देख लेते हैं एक बार। लेट्स सी। पहले होगा कि गैलेक्टिक एंड पोलर आइस इज मेल्टिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ओके गैलेक्टिक एंड पोलर आइस इज मेल्टिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वेरी गुड। कंसिक्वेंटली रिजल्टिंग इन रेज्ड ओशन लेवल एंड फ्लड्स। तो क्या हो गया ये? एनीबॉडी सेइंग समथिंग? आवाज नहीं आ रहा मेरा? Am I audible to you all? यस मैम। Okay. तो देखो पहले क्या हो रहा है, पहले हो रहा है सी गैलेक्टिक एंड पोलर आइस इज मेल्टिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो गया, पोलर आइस एंड गैलेक्टिक जो है वो मेल्ट कर रहा है, उससे क्या हो जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से ये सब मेल्ट कर रहा है। ठीक है, अब उससे क्या हो जा रहा है, जब मेल्ट कर रहा है उससे क्या हो रहा है, कंसिक्वेंटली रिजल्टिंग इन रेज्ड ओशन लेवल एंड फ्लड्स। तो क्या हो रहा है, उससे ओशन लेवल रेज हो जा रहा है एंड फ्लड्स आ रहे हैं। ठीक है, अब उससे क्या हो रहा है, फ्लड्स आ गया, ओशन लेवल रेज हो गया, और क्या हो रहा है, ऑल्सो द राइज इन ओशनिक टेम्परेचर एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। तो CAE आ गया। ओके, ओशन टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और प्लास्टिक का पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, दैट रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेरीन स्पेसेस। मेरीन स्पेसेस कम होते जा रहा है, लाइक प्लैंक्टन, कोरल फिश, सील्स, ग्रेट बैरियर रीफ एटसेट्रा। CAEBD। अब बताओ किसी को कोई डाउट? আচ্ছা সৌম্যা, ওখানে ঝড় না ম্যাম। হচ্ছে, কোথায় থাকো তুমি? सौम्या where do you stay? रायगंज। यार यहाँ पे भी थोड़ा भेज दो, बहुत गर्मी है यहाँ पे, सच बता रहे बहुत ज्यादा गर्मी है। तुम लोग के वहां पे भी झड़ हो रहा है क्या? नो मैम। ओके अच्छा, रेनिंग, इट्स रेनिंग देयर, वाओ वेरी गुड। यार यहाँ पे तो बहुत गर्मी है। এক্স্যাক্টলি, এখানে তো গরমে মরে যাচ্ছি, এক্স্যাক্টলি এখানে মরে যাচ্ছি। 3 ঘন্টার মধ্যে চলে আসবে বৃষ্টি। আরে আসবে না, আমাদের এখানে কোনোদিন বৃষ্টি আসে না। হ্যাঁ দমদম মরুভূমি হয়ে গেছে। चलो ये वाला देखो, अच्छा रुको, 5 करने से पहले ये कर लो। हाँ ये वाला, इसमें क्या है देखो, सेंटेंस ए जो है वो फिक्स है और बाकी जो है वो तुमको मतलब अरेंज करना है। मतलब ए विल बी फिक्स्ड एंड BCDE जो है वो तुमको अरेंज करना है। अच्छा सुशांत, तो गाना गाना बंद करो, सावन में लग गई आग। तुम लोग में से किसी ने फैमिली मैन देखा है? मैडम देखेंगे आज। দেখবো সিজন 2। শুরু আরে করেছি আমি দেখো, দুটো এপিসোড দেখেছি। কেউ পুরোটা দেখোনি? না না, আমার আগের ব্যাচের গুলো সবাই পুরোটা দেখে নিয়েছে। somebody was like ম্যাম স্পয়লার কেউ দেবে স্পয়লার্স and- দেবে না, কেউ স্পয়লার্স দেবে না, কেউ আমি স্পয়লার্স আমি দেবে না। দুটো দেখে নিয়েছি, আমি কিন্তু স্পয়লার দিয়ে দেবো। না 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 না, উইকেন্ড নষ্ট হয়ে এগুলো যাবে। ঠিক না, সিরিয়াসলি। আমার স্টুডেন্টরা বলছিল ম্যাম দিয়ে দি স্পয়লার, আমি বললাম যে দেবে আমি ওকে রিমুভ করে দেবো এখান থেকে।
টেলিগ্রামে তো আমি অ্যাকচুয়ালি আমি টেলিগ্রাম থেকেই ডাউনলোড করেছি, আমার কাছে অ্যামাজন প্রাইম এ টাইম নেই, আমি বাবা। টেলিগ্রাম থেকেই ডাউনলোড করেছি। আমি তাই এক্স্যাক্টলি। করবো এন্ড ভাবছি। আমি সেদিন যেদিন যেদিন হয়েছে সেদিনই ডাউনলোড করে আমি সেভ করে নিয়েছি, বিকজ তারপরে কপিরাইট স্ট্রাইক মেরে দেয়, দেন ওটা ওখান থেকে ডিলিট হয়ে যায়। দ্যাট ইজ ওয়াই আমি যেদিন ওই 8টার সময় আই থিঙ্ক বেরিয়েছে, 9টার মধ্যে টেলিগ্রামে চলে এসেছে, ডাউনলোড করে আমি সেভ করে রেখে দিয়েছি। ম্যাম একটা কাজ করতে পারো তো, আমাদের torrent গ্রুপে দিতে তো পারো, লিংকটা torrent দিয়ে দিতে দিতে পারো। পারো। torrent গ্রুপে দিলে হ্যাঁ, আচ্ছা, চ্যানেলের লিংকটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি চ্যানেলের লিংকটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওই চ্যানেলে পাওয়া যাচ্ছে। আইল সেন্ড। ওকে। ঘুষ লাগবে, ঘুষ। এগুলো ঠিক না। হ্যাঁ। चलो 6 वाला बताओ। अच्छा, CEDB CEDB CEDB, ओके, ए तो फिक्स है सबका, और आ रहा है आंसर CEDB। হ্যাঁ। ओके, और किसी का कुछ अलग? নো ম্যাম, CEDB। ओके, लेट्स सी। ए तो फिक्स है, चलो। इंडिया इज होम, ओके कहाँ गया, ठीक है, चलो। इंडिया इज होम टू मोर देन 20 crore हाउसहोल्ड, ओके, इंडिया इज होम टू मोर देन 24 crore हाउसहोल्ड्स, ठीक है, आउट ऑफ विच अबाउट 10 crore, ठीक है, 24 crore हाउसहोल्ड्स का घर है इंडिया, आउट ऑफ विच अबाउट 10 crore हाउसहोल्ड्स आर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ एलपीजी एज कुकिंग फ्यूल। तो उसमें से 10 crore के पास अभी भी एलपीजी कुकिंग फ्यूल नहीं है। So what they have to do, they have to rely on firewood, coal, etc. as primary source of cooking, ठीक है। And उससे क्या होता है, the smoke from burning such fuels causes alarming household pollution। इससे जो smoke आता है उससे क्या होता है कि household pollution हो रहा है, household pollution हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, adversely affect कौन हो रहा है, women and children, causing several respiratory diseases। So CEDB, मतलब CEDB हो जाएगा, और A तो पहले से फिक्स है, तो ये हो जाएगा आंसर। सबका क्लियर है ये वाला, कि किसी को कोई डाउट? नो मैम। No. आएगा क्या एग्जाम में? हाँ, क्या कोई कुछ बोल रहा था? मैम मुझे इतना सिंपल आता है क्या एग्जाम में, इतना सिंपल आपको? देखो, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं, ये सोच के मत जाना कि सिंपल नहीं आएगा। कभी कभी सिंपल में ही बहुत ज्यादा डाउट होता है, कभी कभी ना ऐसा क्या करेगा, बहुत सिंपल दे देगा, लोगों को लगेगा इतना सिंपल नहीं दिया, ये तो कुछ घुमाया फिराया ही होगा, ठीक है। कभी कभी बहुत सिंपल दे देता है, ये भी है, बहुत सिंपल दे देगा कभी कभी। और पता है, ऐसा देखा गया है ना, जब पेपर इजी आया है ना, तभी लोगों को कट ऑफ भी बहुत बहुत समय ऐसा हुआ है कि पेपर इजी आया है लेकिन कट ऑफ भी इंग्लिश में कम गया है, क्योंकि पेपर इजी आने की वजह से लोग ज्यादा कंफ्यूज होकर गलत आंसर करके आए हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया। अगर डिफिकल्ट रहता है तो लोग फिर भी सोचते हैं, इजी रहता है ना तो लोग आंख बंद करके गलत करके आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हार्ड ही आएगा, इजी ही आएगा, इजी भी आ सकता है, बट डिपेंड्स अपन कि तुम लोग का प्रैक्टिस है कि नहीं। ম্যাম চলো। 5টা করবো না আমরা? হ্যাঁ করবো, আগে এটা করে নিই তারপর যাবো ওখানে। আমরা টেস্ট দিলাম, একটা টেস্ট স্যাম্পল টেস্ট দিলাম, ওখানে সব সাবজেক্ট মিলিয়ে মানে ম্যাক্সিমাম ঠিক হচ্ছে ইংলিশে আর ম্যাক্সিমাম ভুল হয়েছে ইংলিশে। ম্যাক্সিমাম এক্স্যাক্টলি, ইংলিশে সব থেকে বেশি ঠিক হতে পারে, আবার ইংলিশে কিন্তু সব থেকে বেশি ভুল হতে পারে। না, আমার দুটো জিনিসই একই সাবজেক্টে হলো, ম্যাক্সিমাম ঠিক হয়েছে ইংলিশে বা ম্যাক্সিমাম ভুলটা হয়েছে ইংলিশে। বাকি তো মানে বাকি খুব সেন্সিটিভলি মানে বাকি সাবজেক্টগুলো সেন্সিটিভলি করেছি, আর এইখানে তো সব পাঠাতেই আমি ঠিক করেছি, মানে সিলেক্ট করে গেছি, দিয়ে ভুলও সেরকম আচ্ছা, ভাবেই ইংলিশে বেরিয়েছে। সব থেকে বেশি ঠিক, ইংলিশে সব থেকে বেশি ঠিক কখন হলো, আর ইংলিশে সব থেকে বেশি ভুল কখন হলো? ইংলিশে ভুল হয়েছে আপনার এই মানে প্যারাফ্রেজিংটা, ঠিক আছে, প্যারাফ্রেজিং এ আর প্যারাফ্রেজিং ABCD আর ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এ মোটামুটি কয়েকটা ভুল হয়েছিল আমার। বাকি বাকিগুলোতে তাও মার্ক ওঠাতে পেরেছি না। एग्जैक्टली। तो देखो, इंग्लिश है किंतु इंग्लिश इज आल्सो मेकर और ब्रेकर। क्या होता है ना, कभी कभी इंग्लिश ही मेकर बन जाता है और कभी कभी इंग्लिश ही ब्रेकर बन जाता है। इसीलिए ठीक है, जितना इजी है उतना ही डिफिकल्ट भी है, दैट इज द थिंग। चलो, DCEB आंसर आया। अच्छा, और क्या क्या आंसर आ रहा है बताओ? ADCEB। पहले सबने क्या बताया? DCEB। DCEB, अच्छा ADCEB, वही तो हुआ DCEB। ও আচ্ছা, হ্যাঁ ADCBE ADCEB। अच्छा, CBE मतलब DCBE,
ये कोई कोई बोल মানে रहा है, ওটা যেটা चलो देख लेते हैं। ये दो आंसर आया। पहला है वी फील दैट वी गेट सक्सेस बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड इट इज ट्रू। ठीक है, वी फील दैट वी गेट सक्सेस बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड इट इज ट्रू। फाइन। उसके बाद है बट समटाइम्स you would have noticed that ना it is true, we feel that we get success because of our hard work and it is true। ठीक है, उसके बाद आ जाता है but sometimes you would have noticed, हाँ, but sometimes you would have noticed that we are not able to। ठीक है, we feel that we get success because of our hard work and it is true but sometimes we have noticed that we are not able to। क्या बोल रहा है कि हम अपना सक्सेस पाते हैं हार्ड वर्क से एंड दिस इज ट्रू बट लेकिन क्या हो जाता है समटाइम्स वी वुड हैव यू वुड हैव नोटिस दैट वी आर नॉट एबल टू अचीव द थिंग दैट वी कुड हैव इजीली अचीव्ड। तो डी और सी दोनों में सेम आ गया, that we could have easily achieved। अब किसी ने पहले बी बोला है, किसी ने पहले ई बोला है, that we could have easily achieved। समझ लो सेंटेंस यहाँ पे खत्म हुआ। फिर हम कहते हैं we did something wrong even though we could have done it correctly। we did something wrong even though we could have done it correctly maybe because sometimes we choose the wrong option। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले ई इसलिए बोला क्योंकि हमने गलत किया, उसको हम सही कर सकते थे लेकिन गलत क्यों किया, क्योंकि हम समटाइम्स क्या करते हैं ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन चूज करते हैं। तो इसका रीजन ई वाले का रीजन बी में स्टेट किया हुआ है, दैट इज वाई हम लोग ई के बाद बी लेकर आ रहे हैं। बी का रीजन ई में नहीं है लेकिन ई का रीजन क्या है बी में है, दैट इज वाई डी सी ई बी हो रहा है। এই পুরো প্যারাটার মানেটা কি? মানে বলছে we feel that মানে সাকসেস হচ্ছে আমাদের হার্ড ওয়ার্ক থেকে আমরা পাই, it is true but sometimes কি হয় আমরা নোটিস করেছি that we are not able to achieve the thing যেটা আমরা ইজিলি পেয়ে যেতাম সেটাও অ্যাচিভ করতে পারছি না। তাহলে কি হচ্ছে আমরা we did something wrong, মেবি আমরা কিছু ভুল করেছি যেটা আমরা ঠিক করতে পারতাম। ঠিক আছে, আমরা কিছু ভুল করেছি যেটা আমরা ঠিক করতে পারতাম and এটা এটা কেন হয়েছে বিকজ সামটাইমস আমরা কি করেছি রং অপশনকে চুজ করে ফেলেছি, এই জন্য আমাদের ভুল হয়ে গেছে। যেটা আমরা ইংলিশে এখন কথা বলছিলাম মানে পেপারটা ইজি এসেছিল কিন্তু আমার ভালো হয়নি। কেন ভালো হয়নি, কি করলাম মানে ওই ইজি পেপার এসছে ওই আনন্দতে কি করে এসছি ভুল অপশনটাতে ক্লিক করে চলে এসেছি, এই জন্য মানে ওটা আমি ঠিক করতে পারতাম কিন্তু ওটা আমি কি করলাম ওটা আমি ভুল করে চলে এসেছি বিকজ আমি রং অপশনটা চুজ করে চলে এসেছি। দ্যাট ইজ ওয়াই এই যে ই অপশনটার রিজনটা হচ্ছে বি, ই এর রিজন বি তে চলে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ ওয়াই ডি सी ई बी। লাইক ई का जो কোশ্চেন পুরো বাপ রে। है मतलब ई का जो रीजन है वो रीजन बी में जा रहा है इसीलिए ई के बाद बी आ रहा है। क्लियर हुआ ये वाला बात? मतलब बोल रहे हैं पेपर हम मतलब हम वो जो गलत किया वो हम सही कर सकते थे बट वो गलत क्यों किया हमने, क्योंकि हमने रॉन्ग ऑप्शन को चूज कर लिया था। क्लियर हुआ? ई का ऑप्शन ई का रीजन हमें बी में मिल रहा है, देखो देख ठीक से ई का रीजन हमें बी में मिल रहा है। क्लियर हुआ सबको? बताओ। यस मैम। यस चलो 5টা করে নাও। बी सी डी ई ए। चलो देख लेते हैं। किसी ने कहा बी सी डी ई ए, और बताओ। और आ रहा है बी सी डी, अच्छा वो भी बी सी डी ई ए। मैम बी सी डी ई ए। हाँ वही लिखा है मैंने बी सी डी ई ए। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी। मैम बी ए सी डी ई। बी ए सी কি বললে তারপর? डी ई। B No, A no, C no. D No, E. E D, sorry, E D, not D E, E D. আচ্ছা আর কি হতে পারে? আর একজন বলছে বি এ ডি সি ই, বি এ ডি সি ই, আরেকজন বলছে ডি বি এ ই সি, ডি বি এ ই সি।
BACDE আচ্ছা ওটা তো লেখা আছে, BADC সেটাও লেখা আছে। পুরো পারমিউটেশন কম্বিনেশন চলছে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, চলো দেখে নি। স্টার্টিং হবে ডিজিটাল ইন্ডিয়া ইনিশিয়েটিভ ইজ আ ভেরি মিনিংফুল প্রোগ্রাম। ওকে BADC ঠিক আছে, ঠিক আছে চলো ডিসকাস করে নি। আগে হচ্ছে ডিজিটাল ইন্ডিয়া ইনিশিয়েটিভ ইজ আ ভেরি মিনিংফুল প্রোগ্রাম introduced by the government. Okay, digital India initiative is a very meaningful program introduced by the government. Okay, which government? Government of India, to improve digital connectivity and make the governance in the country more transparent. Okay, B के बाद A आ रहा है, ये श्योर हुआ सबका? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो एकदम कनेक्टिविटी आ गया बी के बाद ए, तो बी के बाद ए आ गया, ये सबको क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? नहीं बी के मैम, बाद ए आ रहा है, नहीं नो हुआ? मैम। देखो देखो, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव इज अ वेरी मीनिंगफुल प्रोग्राम। ठीक है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव क्या है? एक बहुत ही मीनिंगफुल प्रोग्राम है, इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, उसके बाद ही देखो लिखा है ऑफ इंडिया, मतलब क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव डिजिटल कनेक्टिविटी। गवर्नमेंट किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का गवर्नमेंट, टू इम्प्रूव डिजिटल कनेक्टिविटी एंड मेक गवर्नेंस इन द कंट्री मोर ट्रांसपेरेंट। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट के बाद क्या आ जा रहा है? ऑफ इंडिया, मतलब किसका गवर्नमेंट? इंडिया का गवर्नमेंट। समझ में आया? बी के बाद ए, समझ में आया? हाँ मैम। क्लियर हुआ ये वाला जिसको डाउट हो रहा था बी के बाद ए क्यों आ रहा है? इज इट क्लियर? आई थिंक किसी को डाउट था बी के बाद ए क्यों आ रहा है। क्लियर हुआ सबको? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। नहीं होगा क्लियर तो फिर एक चीज बताना। और है, ए ऑप्शन में देखिए ट्रांसपेरेंट के बाद फुल स्टॉप दिया हुआ हाँ मे बी वो शायद गलती हाँ से दे मैम, दिया क्लियर होगा। हुआ। ठीक है, मे बी गलती से दे दिया होगा, लेकिन सेंटेंसेस में फुल स्टॉप मेनली रहता नहीं है। ठीक है, कॉमा ये सब रहता है, लेकिन हाँ बी के बाद ए आ रहा है, इतना क्लियर हुआ? यस यस। बी के बाद, तो फिर ये दोनों ऑप्शन गया, बी के बाद ए आ गया, ये दोनों में बच गया। अब बचा सी आएगा कि डी आएगा? चलो, मोर ट्रांसपेरेंट। देन आ जाता है, किसने सी का? फॉर मेकिंग बिल पेमेंट्स, बुकिंग टिकट्स, ट्रांसफरिंग मनी एंड मोर। अच्छा, और उसके बाद डी आता है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड बाय अस इन डे टू डे लाइफ। तो पहले तो डी आना चाहिए ना, फॉर मेकिंग क्यों? डिजिटल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड बाय अस इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, क्या हो गया? डी आ गया। BAD, digital technologies are increasingly being used by us in day to day life. ठीक है, in day to day life फिर क्या है? It is being used in retail stores, government offices and almost everywhere for making bill payments, booking tickets, transferring money and more. Is it clear? तो फिर आंसर क्या हो गया? BADEC। क्लियर हुआ? BADEC। हम लोग का सारा आंसर गलत हो गया। अरे कोई बात नहीं, पहली दिन हम लोग कर रहे हैं ना, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, BADEC क्लियर हुआ? ম্যাম আচ্ছা, ফার্স্ট লাইন এই ডিটা ফার্স্টে ইউজ করা পসিবল না? তাহলে যদি আমরা বলি যে ডিজিটাল ইন্ডিয়া ইনিশিয়েটিভটার জন্য ওটা ইউজ করা হচ্ছে সব জায়গায়, আচ্ছা তাহলে যদি আমরা ডিটা স্টার্টিং এ ইউজ করি তাহলে বলো সেন্টেন্স অ্যারেঞ্জমেন্টটা কেমন হবে বলো? মানে ডিবিএইসিটা। DBAEC। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখে নিচ্ছি। DBAEC আগে হলো ডিজিটাল টেকনোলজিস আর ইনক্রিজিংলি বিং ইউজড বাই আস ইন ডে টু ডে লাইফ। ঠিক আছে, তারপর আসছে ডিজিটাল ইন্ডিয়া ইনিশিয়েটিভস is a very meaningful program introduced by the government, তারপর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। ঠিক আছে, তারপর it is being used in retail stores। আচ্ছা তাহলে ডিজিটাল টেকনোলজিস আর ইনক্রিজিংলি বিং ইউজড বাই আস ইন ডে টু ডে লাইফ। ঠিক আছে, তারপর চলে গেলাম ডিজিটাল ইন্ডিয়া ইনিশিয়েটিভে। তাহলে ডিজিটাল টেকনোলজিস এর যে ইউজটা ডে টু ডে লাইফটা, ওটা তো শেষই হলো না। ডিজিটাল টেকনোলজিস আর ইনক্রিজিংলি বিং ইউজড বাই আস ইন ডে টু ডে লাইফ, তারপর তো ওটার এক্সাম্পলস দেওয়া আছে, তো ওই এক্সাম্পল গুলোকে তো ইউজ না করে আমরা ডিজিটাল ইন্ডিয়া ইনিশিয়েটিভে চলে গেলাম। আচ্ছা ম্যাম, বুঝতে পেরেছি, থ্যাংক ইউ। ओके ओके चलो ये हम लोगों का हो गया। मैम এই জিনিসটাকে ঠিকঠাক করার জন্য কোনো मेरे को টেকনিক याद दिलाना, मैं फिर एक और तुम टेक्निक नहीं, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, दैट इज अ थिंग, प्रैक्टिस गिव्स यू परफेक्शन। इफ यू वांट আমি আরো, ইফ ইউ ওয়ান্ট। ঠিক আছে, তোমরা যদি চাও তাহলে ইফ ইউ ওয়ান্ট তাহলে আমি বলছি ইফ ইউ পিপল ওয়ান্ট তাহলে আমি এরকম একটা এক্সারসাইজ তোমাদের বাড়িতে প্র্যাকটিসের জন্য সেন্ড করে দিতে পারি। ওকে ম্যাম। श्योर मैम, श्योर मैम।
পাঠিয়ে দেবো। ওকে ওকে ফাইন। আচ্ছা ক্লোজ টেস্ট করবে নাকি টাইম হয়ে গেছে? দ্যাট ইজ দ্য থিং। 3 মিনিট আছে। টাইম অসমি Time তো হয়ে অলমোস্ট গেছে। হয়ে গেছে। টাइम होएगा। नेक्स्ट अच्छा क्लास मैम का 3 कार्ड। मिनट 3 मिनट है मैम। मैं पूछना चाहती थी ऑप्शंस पे जो कलर आता है उसका मीनिंग बता सकते हैं? ऑप्शन में जो क्या आता है? एग्जाम हॉल में जो ऑप्शंस रहता है उसका जो कलर होता है रेड और ग्रीन तो समझ में आ जाता है, बाकी कलर्स जो रहते हैं पर्पल वगैरह वो समझ में नहीं आता। देखो एक होता है ना कि उसमें देखो कि जब तुम एग्जाम स्टार्ट करोगी ना उसके पहले लिखा रहेगा कि मार्क फॉर करेक्शन, मतलब कि तुमने एक बार उसको टिक कर दिया लेकिन तुमको डाउट है कि नहीं, मतलब मैं फिर से आके इसको एक बार क्वेश्चन को देखूंगी। मतलब समझ लो तुमने एक क्वेश्चन को टिक किया ए, लेकिन तुमको लग रहा है बी भी हो सकता है, लेकिन चलो इसको बाद में देखेंगे, अभी ज्यादा माथा नहीं घमाएंगे। तो अभी तुमने ए में टिक कर दिया, फिर तुमने मार्क पर रिव्यू जब कर दिया ना तो वो वायलेट हो जाएगा शायद। मतलब क्या कि तुमको वो फिर बाद में आके देखना है, तो वो जब तुम्हारा सारा क्वेश्चन हो जाएगा ना तो तुम्हारे पास लिखा रहेगा कि मतलब वायलेट वाला है, तुमको वायलेट में तुम्हारा 4 क्वेश्चन रखा हुआ है, मतलब क्या कि तुमको 4 क्वेश्चन रिव्यू करना है फिर से। फिर रेड रहता है कि मतलब उसको तुमने छोड़ दिया है, ग्रीन रहता है कि तुमने उसको परफेक्शन मतलब हाँ मेरे को और उसको देखना नहीं है, वैसा रहता है। चार कलर का 4 मतलब उसमें स्टार्टिंग में ही लिखा रहता है कि किसका क्या मतलब है। रेड का मतलब होता है कि तुमने उसको किया ही नहीं है, ग्रीन का मतलब होता है कि तुमने कॉन्फिडेंटली उसको कर दिया है, वायलेट का मतलब होता है शायद रिव्यू वाला, और एक कलर येलो होता है शायद। येलो का मतलब क्या होता है कि हाँ अभी स्किप कर दे रहे हैं, बाद में ম্যাম फिर ওই आके চারটে देखिए। ইয়েলো ফিয়েলো থাকে না, ওই চারটেই থাকে, ওই যে গ্রিন রেড ভায়োলেট আর না গ্রিন রেড আর ভায়োলেট এই তিনটেই থাকে। अच्छा 3 थे ना, तो वही मतलब समझ में आया? ओके मैम। ओके अच्छा तो फिर आज हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे। अच्छा नेक्स्ट दिन तब हम लोग एक काम करेंगे, वी विल स्टार्ट टेंसेस। ओके मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये सब स्टार्ट करना है, इसका भी रूल्स देखना है क्योंकि ये वाले रूल्स हमारे एरर डिटेक्शन में बहुत हेल्प करता है। तो नेक्स्ट दिन हम लोग टेंस स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग अगर टाइम बचा तो क्लोज टेस्ट कर लेंगे। क्लियर? मैम आज पैरा जंबल्स खत्म कर दे। हाँ पैराजम्बल्स हो गया। इफ यू वांट मैं होमवर्क सेंड कर दूंगी पैराजम्बल्स का कुछ। ओके मैम। ম্যাম অ্যাডজেক্টিভের কয়েকটা হোমওয়ার্ক বাকি ছিল চেক করা। अच्छा हाँ ठीक है, वो भी नेक्स्ट दिन कर देंगे क्योंकि तुम लोग का अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। 3 बजे किसका क्लास है? सचिन सर का। मैथ्स है। अच्छा अच्छा तो फिर जाओ। ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर एडजेक्टिव का पहले स्टार्ट डिस्कशन कर लेंगे, फिर टेंसेस करेंगे और अगर टाइम बचा तो फिर हम लोग क्लोज टेस्ट कर लेंगे। क्लियर? ম্যাম ওই ফ্যামিলি ম্যানের লিংকটা একটু পাঠাবেন না? हाँ हाँ ओके ओके सेंड कर। সিরিয়াসলি हाँ आगे मेरे को घूस दे दो तो सबको ही फिर देंगे। चलो टाटा बाय बाय। ওকে बाय बाय टेक केयर। थैंक यू मैम। थैंक यू बाय बाय।